گزاری کرتے ہیں کہ آج پھر اس نے ہمیں قبول کیا ہے، ہم اس کے آگے حاضر ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے مزمور کی کتاب اس کا 95 زبور۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جس چیز کی کمی ہماری زندگیوں کے اندر ہوتی ہے وہ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے دور کرتا ہے۔ آج خدا جو ہم سے کلام کرنے کا ہے، یقیناً ہمارے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے برکت کا باعث ہے۔ ہمیں پہلی آیت سے 7ویں تک ہم پڑھیں گے 95 زبور۔ اور ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں، اپنے نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے۔ زمین کے گہراؤ اس کے قبضے میں ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں۔ سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا، اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی چراگاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں۔ کاش کہ آج کے دن تم اس کی آواز سنتے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ چھٹی آیت کو ہم ریپیٹ کریں گے۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں۔ تشریف رکھیے، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھنے کو ہیں۔ ہماری مرکزی آیت اس کو یاد رکھیے۔ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ چھٹی آیت، آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں۔ پچھلے جمعے ہم نے مال کی کتاب میں سے 35ویں آیت کا اگلا حصہ جو سیکھا تھا، دینے کے متعلق تھا۔ خدا کے خادم کے وسیلہ سے ہم نے سیکھا، اور آج ہم خدا کے کلام میں سے مال کی کتاب میں سے سیکھیں گے 20ویں باب کی 36ویں آیت کا پہلا حصہ۔ اس آیت میں بھی 2 حصے ہیں، 2 ٹاپک ہیں جو ہمیں سیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آیت ہم پوری پڑھیں گے، لیکن ہم پہلے حصے کو سیکھیں گے۔ 36ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا کی۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے گھٹنے ٹیکنے کے متعلق سیکھیں گے۔ بارہا ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ گھٹنے ٹیکنا خدا کے حضور ضروری ہے، گھٹنے ٹیکنا چاہیے۔ مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے لوگوں نے خدا کے حضور گھٹنے ٹیکے، دعائیں کی۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے ایک بہت ہی زبردست طریقہ کار، جس کے وسیلہ سے یقیناً ہم برکت پائیں گے۔ ہم سیکھیں گے کہ گھٹنے ٹیکنا بائبل مقدس میں کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، گھٹنے کا لفظ کہاں سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم گھٹنے ٹیکنے کے متعلق سیکھیں، اس کی تاریخ کو سیکھیں، میں آپ کے سامنے دعا کے طریقے، جو ہمارے باڈی پوسچر جب ہم خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں، جب ہم اپنی دعائیں مانگتے ہیں، تو خدا کے کلام کے مطابق تقریباً 9 طریقے ہیں جو ہم اپنا کر اپنے جسم کو خدا کی حضوری میں ڈیلتے ہیں۔ دعا کے لیے ہم اپنے جسم کو استعمال کرتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر ہے سجدہ کرنا۔ سجدہ کرنے سے خدا کی تعظیم ہوتی ہے، ہم سجدہ کر کے دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خروج 34 باب 8ویں آیت میں، کہ تب موسیٰ نے جلدی سے سر جھکا کر سجدہ کیا۔ جب وہ لوہے لے کر آ رہا تھا، لوہے دوسری مرتبہ وہ گیا، اس نے خدا کو دیکھا، تو لکھا ہے کہ تب موسیٰ نے جلدی سے سر جھکا کر سجدہ کیا۔ دوسرا گھٹنے ٹیکنا، لوکا کی انجیل میں مرقوم ہے 22ویں باب کی 41ویں آیت میں، وہ ان سے بمشکل الگ ہو کر پتھر کے کا ٹپا آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا۔ یسوع مسیح نے ایگزامپل دی ہے گھٹنے ٹیک کر دعا کرنے کی۔
फिर तीसरे नंबर पर मुंह के बल गिरना, या मुंह के बल गिर कर खुदावंद को सिजदा करना, उसके आगे दुआ करना। ये नहमिया की किताब में 8वें बाब की 6ठी आयत में है। और अजरा ने खुदावंद को मुबारक कहा और उन्होंने औंधे मुंह होकर खुदावंद को सिजदा किया। और चौथे नंबर पर हाथ उठाना। तो ये हमें मुख्तलिफ जगहों पर खुदा के कलाम में मिलता है, लेकिन पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब 8वीं आयत यूं लिखा है कि बस मैं चाहता हूँ मर्द हर जगह बगैर गुस्से के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करे। और 5वां तरीका आंखें ऊपर उठाना, या आंखें ऊपर उठाकर दुआ करना। यूहन्ना रसूल की मार्फत यीशु मसीह की इंजील उसका 11वां बाब 41वीं आयत में लिखा है, फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मेरी सुन ली। ये भी यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया है, एग्जाम्पल दिया है, तरीकेकार दिखाया है कि हम आंखें उठाकर खुदा को दुआ कर सकते हैं। तो ये उस वक्त का वाक़या जब उसने लाजर को जिंदा किया। फिर खामोशी से दुआ करना, ये हमें खुदा के कलाम में पहले शमूएल पहले बाब की 13वीं आयत में मिलता है। लिखा है, हन्ना दिल में दुआ कर रही थी, उसके होंठ हिल रहे थे पर उसकी आवाज सुनाई नहीं देती थी। और 7वां बुलंद आवाज से दुआ करना। ज़बूर 77 उसकी पहली आयत 77, मैं बुलंद आवाज से खुदावंद खुदा के हुजूर फरियाद करूंगा। फिर 8वां रो रो कर दुआ करना, रो रो कर इबादत करना, रो रो कर खुदावंद की हुजूरी में आना। इब्रानियों के खत में 5वें बाब की 7वें आयत में लिखा है कि उसने अपनी बशरियत के दिनों में रो रो कर आंसू बहा बहा कर उसे दुआएं की। ये सूसी के मतलब। फिर 9वां तरीका खड़े होकर भी हम दुआ कर सकते हैं। ये 9 तरीके इसलिए बताए हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि शायद इस तरीके से खुदा हमारी नहीं सुनेगा, या ये तरीका कलाम के मुताबिक नहीं है। तो 9वां तरीका जो खड़े होकर है, वो भी पहले शमूएल उसका पहला बाब 26वीं आयत में हन्ना एली काहिन को कहती है, लिखा वो कहने लगी कि ऐ मेरे मालिक, मैं वही औरत हूँ जिसने तेरे पास यहाँ खड़ी होकर खुदावंद से दुआ की। तो ये सारे तरीकेकार हैं जो हम खुदा के हुजूर अपनी दुआओं को रख सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है, आप आंखें खोल कर दुआ कर रहे हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपका ताल्लुक खुदा के साथ मुंसलिक होना चाहिए। तो आज इन तरीकों में से हम एक तरीके को सीखेंगे, घुटने टेक कर दुआ करना। हम सीखेंगे कि ये क्यों जरूरी है, क्या क्या इससे बरकत हासिल होती हैं। इससे पहले हम इसकी तारीख को देखेंगे कि घुटने टेकने के लिए बाइबल मुकद्दस में पहली दफ़ा अब्रानी मतन में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था वो पैदाइश की किताब उसका 30वां बाब 3री आयत में। ये जब राखल ने अपनी लौंडी बिल्हा अपने शोहर याकूब को दी, तो उसने कहा कि ये तेरी बीवी होता तो इससे मेरे औलाद पैदा हो। उर्दू तर्जमा में ऐसे है, लेकिन अगर अब्रानी मतन में इसको देखें तो वहाँ पर इसको गोद से मुतरादफ लफ्ज़ माना गया, क्योंकि घुटने का ताल्लुक गोद से बाइबल मुकद्दस में बहुत से ऐसे हवालाजात हैं जो हमें इस दलील को मानने के लिए रजामंद करते हैं कि ये घुटनों का ताल्लुक गोद से भी है। तो यहाँ पर बहुत सी मिसालें हमें खुदा के कलाम में से मिलती हैं। और कैथोलिक तर्जुमों में भी जो राखल ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वहाँ पर कैथोलिक तर्जुमा में लिखा है कि इसके जो औलाद होगी मेरी गोद में हो। तो ये घुटने का लफ्ज़ गोद से मुतरादफ है। तो मुख्तलिफ कुतुब में खुदा के कलाम में हमें ये मिलता है। टाइम की किल्लत की वजह से सारे हम नहीं पढ़ सकते, पैदाइश, अय्यूब, ईसाया, खुदार, सलातीन, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। ईसाया नबी के सहीफे में 66 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है। हम घुटने के मुतालिक सीख रहे हैं और हम सीख रहे हैं कि घुटना गोद से मुतरादफ है। घुटनों का ताल्लुक, घुटनों के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उसका मतलब गोद भी है। 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि देख मैं सलामती
नहर की मानद और कौमों की दौलत सैलाब की तरह उसके पास जमा करूंगा। तब तुम दूध पियोगे और बगल में उठाए जाओगे और घुटनों पर कुदाए जाओगे। तो जब हम इंसानी तौर पर जब हम देखें अपने बच्चों को अगर बैठकर उठाते हैं गोद में तो वो घुटनों पर आते हैं। लिहाजा घुटने और गोद ये दोनों अल्फाज करीब करीब हैं। खुदा के कलाम में बहुत से ऐसे हवाला जाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो खुदा के कलाम में घुटनों का जो ताल्लुक है, घुटने की जो ताकत है, वो इंसान की सेहत से ताल्लुक रखती है। हमने अमाल की किताब में पढ़ा कि पौलुस रसूल घुटने टेक कर सबके साथ मिलकर दुआ करता हमें नजर आता है। तो खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि घुटनों की ताकत इंसान की सेहत से ताल्लुक रखती है। अगर हम घुटने के बल नहीं होते दुआ में, इसका मतलब हम जिस्मानी तौर पर भी कमजोर है और रूहानी तौर पर भी कमजोर है। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों का खत, उसका 12वां बाब। उसकी 12वीं आयत लिखा है, बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो और अपने पाँव के लिए सीधे रास्ते बनाओ, ताकि लंगड़ा बेराह ना हो बल्कि शिफा पाए। और फिर ज़बूर 109 में उसकी 24वीं आयत में लिखा है, तो फाका करते करते मेरे घुटने कमजोर हो गए और चिकनाई की कमी से मेरा जिस्म सूख गया। तो घुटनों का ताल्लुक जो है वो इंसान की सेहत से बहुत ज़्यादा मुंसलिक है। खुदा चाहता है कि हम घुटनों के बल होकर उसकी हुजूरी में दुआ करें ताकि हम रूहानी तौर पर ताकत पाएं। फिर दूसरे नंबर पर घुटनों की बीमारियां उन लानतों में शुमार है जो खुदा से बेवफाई पर आती है। ये खुदा का कलाम कहता है। अगर हमारे घुटनों में दर्द है, अगर हमारे घुटनों में प्रॉब्लम है, तो खुदा का कलाम आज हमें आईना दिखा रहा है। अगर हमने बेवफाई की है, हमें पता है, हम खुदा की तरफ फिरें, यकीनन खुदा रहम करेगा, क्योंकि घुटनों की बीमारियां लानतों में शुमार हैं जो खुदा से बेवफाई पर आती है। मेरे साथ निकालिए इस्तिस्ना की किताब, उसका 28वां बाब। ये खुदा के मुंह के अल्फाज हैं। इसकी 35वीं आयत, हम घुटनों के बल होने के मुतल्लिक सीख रहे हैं। हमें इन चीज़ों को साथ साथ सीखना है। 28वां बाब 35वीं आयत लिखा है, खुदावंद तेरे घुटनों और टांगों में ऐसे बुरे फोड़े पैदा करेगा कि उनसे तू पाँव के तलवे से लेकर सर की चांदी तक शिफा ना पा सकेगा। और ये ऊपर अगर आप हेडलाइन देखें, अगर आपकी बुक्स में बाइबल में है, तो वहाँ पर लिखा नाफरमानी के नतायज। अगर हम खुदा से नाफरमानी करते हैं तो ये खुदा हमारे लिए ये सजा ठहरा रहा है। फिर उसके बाद मेरे साथ निकालिए दानियल नबी का सहीफा, उसका 5वां बाब, 6ठी आयत। अगर हम खुदा के साथ बेवफाई करेंगे तो हमारे घुटनों को बेजान कर देगा, फोड़े निकलेंगे। 6ठी आयत, दानियल 5वां बाब 6ठी आयत। देखा था, बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके ख्यालात उसको परेशान करने लगे, यहाँ तक कि उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। ये क्यों हुआ? इस आयत को मैं दोबारा पढ़ता हूँ, इस पर गौर कीजिए। तब बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके ख्यालात उसको परेशान करने लगे, यहाँ तक कि उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। इसलिए हुआ क्योंकि उसने हैकल के मुकद्दस ज़रूफ में मैनोशी की थी, उसने खुदा के साथ बेवफाई की थी। आज खुदा हमें ये सिखाता है, खुदा का कलाम ये बताता है, तुम्हारा जिस्म रूह कुद्दस का मक़दिस है। अगर हम अपने जिस्म को नापाक करते हैं तो ये सजा आज भी हमारे लिए वाजिब है, ये हमारे लिए तैयार है। उसने मुकद्दस
ظروف میں میں نے سیکھی تھی، لیکن یہاں خدا کہتا ہے کہ تمہارا جسم روح القدس کا مقدس ہے۔ اگر ہم اسے ناپاک کریں گے تو یقیناً خدا ہمارے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج خدا ہمیں یہ تنبیہ کر رہا ہے، ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے، اگر آپ اپنے جسم کو نجس کرتے ہو، ناپاک کرتے ہو جو روح القدس کا مقدس ہے، تو توبہ کرو تاکہ تمہاری ہڈیوں میں صحت ہو، تمہارے گھٹنوں کی درد ختم ہو۔ تیسرے نمبر پر کسی شخص کی تعظیم یا بادشاہ کی تعظیم کے لیے گھٹنے ٹیکے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر دوسرا سلاطین اس کا پہلا باب 13ویں آیت ہے، ایلیا نبی جب ان 50 کی پلٹن پر لعنت کرتا ہے تو خدا کے آسمان سے آگ نازل ہوتی ہے، ان کو بھسم کرتی ہے۔ تو جب 2 گروپ بھسم ہوئے تو تیسرے نے اس کے گھٹنوں میں لکھا ہے کہ اس نے گھٹنوں میں جھک کر اس کی منت کی، اس کے آگے گھٹنے ٹیکے۔ گھٹنے ٹیکنا انسان کے آگے بھی خدا کے کلام میں ملتا ہے، بادشاہوں کے آگے بھی گھٹنے ٹیکے جاتے تھے۔ یوسف کے لیے جب فرعون نے اعلان کرایا، اس نے یہ بھی اعلان کرایا کہ یہ بادشاہ ہے، اس کے آگے گھٹنے ٹیکے۔ لوگوں نے اس کے آگے گھٹنے ٹیکے، داؤد بادشاہ کے آگے لوگوں نے گھٹنے ٹیکے۔ تو یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، بادشاہوں انسانوں کے آگے بھی گھٹنے ٹیکے جاتے تھے۔ پھر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، اعمال 20ویں باب کی طرف۔ ہم نے سیکھا ہے کہ گھٹنے ٹیکنا طاقت کی نشانی ہے، روحانی طاقت کی نشانی ہے۔ گھٹنوں کی بیماریاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم خدا سے بے وفائی کر رہے ہیں، خدا کی لعنت ہم پر ہے۔ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ پھر ہم اعمال 20ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے۔ پولس نے جو گھٹنے ٹیکے، اس نے جو پریکٹیکلی ہمیں کر کے دکھایا، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیوں اس نے گھٹنے ٹیکے؟ کیونکہ وہ خدا کے کلام کی گہرائیوں کو جانتا تھا، خدا کا روح اس کے ساتھ تھا، وہ خدا کے ساتھ پیوست تھا، وہ خدا کی خدمت میں تھا، اس لیے خدا کے سارے راز جو تھے وہ اسے معلوم تھے۔ ہم پہلے نمبر پر یہ سیکھیں گے کہ گھٹنے ٹیکنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ یہ خدا کے منہ کے الفاظ ہیں۔ ہلیلویہ، خدا کے منہ کے الفاظ ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 45واں باب۔ یہ خدا نے خود فرمایا ہے۔ باب اس کی 22ویں 23ویں ہے۔ جو لکھا ہے، اے انتہائی زمین کے سب رہنے والوں، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے اور وہ ٹلے گا نہیں، کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی۔ گھٹنا ٹیکنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ خدا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ خدا نے فرمایا ہے۔ ہمیں گھٹنے ٹیک کر دعا کرنا، ہمیں گھٹنے ٹیک کر خدا کی حضوری میں آنا بہت ضروری ہے۔ یہی حوالہ پولس رسول نے رومیوں کے خط میں کوٹ کیا ہے، 14 باب کی 11ویں آیت میں لکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب 9ویں اور 11ویں آیت۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا کا کلام اس کے روح القدس کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا، لکھا گیا۔ فلپیوں 2 باب 9 سے 11 لکھا کہ اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا، اسے یسوع مسیح کو۔ دوسرے باب کے اگر 5ویں آیت ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ ویسے ہی مزاج جیسا اسی یسوع کا بھی تھا،
पौलुस रसूल ये तालीम दे रहा है, ये बता रहा है कि उसने किस तरह वो जलाल पाया, उसने खादम की सूरत इख्तियार की, उसने खुदा के बराबर होने को अपने कब्जे में रखने की चीज ना समझा। आगे 9वीं आयत में लिखा है कि इस वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके। हालेलुया। वह आसमानियों का हो वह जमीनियों का, वह उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए, इसके लिए खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदा है। यहाँ पर हमें बाप की अलग पहचान मिल रही है और यीशु की अलग, बाप और बेटा। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। तो ये खुदा के कलाम में लिखा है। ईसाया नबी के सीफे में हमने पढ़ा कि हर एक घुटना में जाकर झुकेगा। यहाँ पर यीशु मसीह के मुतल्लिक लिखा है ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, वह आसमानियों का हो वह जमीनियों का, और उनका जो जमीन के नीचे है। तो घुटने टेकना ये खुदा की मर्जी को पूरा करना है। अगर आप घुटने टेक कर दुआ करते हैं, खुदा की हुजूरी में आते हैं, तो ये जान लीजिए कि ये खुदा की हम फर्मा बरदारी कर रहे हैं, उसके हुक्म की तामील कर रहे हैं। नंबर 2, क्योंकि ये अपनी खुदी का इनकार है। अगर हम घुटने टेकते हैं, हम अपने आप को ज़ेर करते हैं, हम अपनी खुदी का इनकार करते हैं। मेरे साथ निकालिए अज़रा की किताब। अज़रा एक काहिन था जिस का जिक्र खुदा के कलाम में है, वो कोई आम शख्स नहीं। नवा बाप 5वीं से 7वीं है। दूसरा पॉइंट हम सीख रहे हैं कि अपनी खुदी का इनकार है। खुदी का इनकार है, अपने जो कमजोरियां हैं उसको खुदा के आगे रखना है, अपने गुनाहों का इकरार है, अपने आप को बिल्कुल हकीर कर देना है। 5वीं आयत में लिखा है, और शाम की कुर्बानी के वक्त मैं अपना फटा पहने और अपनी फटी चादर ओढ़े हुए अपनी शर्मिंदगी की हालत से उठा और अपने घुटनों पर गिर कर खुदावंद अपने खुदा की तरफ अपने हाथ फैलाए और कहा, ऐ मेरे खुदा, मैं शर्मिंदा हूँ और तेरी तरफ ऐ मेरे खुदा अपना मुंह उठाते मुझे लाज आती है, यानी शर्म आती है, क्योंकि हमारे गुनाह बढ़ते बढ़ते हमारे सर से बुलंद हो गए, हमारी खताकारी आसमान तक पहुंच गई है। अपने बाप दादा के वक्त से आज तक हम बड़े खताकार रहे और अपनी बदकारी के बायस हम और हमारे बादशाह और हमारे काहिन और मुल्कों के बादशाहों और तलवार और असीरी और गारत और शर्मिंदगी के हवाले हुए हैं, जैसा आज के दिन है। तो ये उसने अपनी खताओं का इकरार किया है, उसने घुटने टेके अपनी खताओं का इकरार किया है, अपने बाप दादा की खताओं का इकरार किया है। तो घुटने टेकना इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को खुदा के हुजूर पस्त करते हैं, हम अपने आप को खुदा के हुजूर हकीर मानते हैं। फिर उसके बाद निकालिए दूसरा तवारीख, उसका 6ठा बाब। दूसरा पॉइंट हम सीख रहे हैं क्योंकि ये अपनी खुदी का इनकार है। 6ठा बाब उसके बाद किसी 14वीं है। लिखा है कि और सुलेमान ने इस्राएल की सारी जमात के रूबरू खुदावंद के मज़बा के आगे खड़े होकर अपने हाथ फैलाए, क्योंकि सुलेमान ने 5 हाथ लंबा और 5 हाथ चौड़ा और 3 हाथ ऊंचा पीतल का एक मेंबर बनाकर स्टेज के बीच में से रखा था। मेंबर यानी स्टेज बनाया, उसी पर वो खड़ा था। सो उसने इस्राएल की सारी जमात के रूबरू घुटने टेके और आसमान की तरफ उनमें हाथ फैलाए और कहने लगा, ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, तेरी मानित ना तो आसमान में ना जमीन पर कोई खुदा है, तो अपने उन बंदों के लिए जो तेरे हुजूर अपने सारे दिल से चलते हैं अहद और रहमत को निकाह रखता है। तो जो उसने अपने आप को पस्त किया, वो बादशाह था, लेकिन वो घुटनों पे बल हुआ। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, हमें अपनी अकड़ अपनी खुदी से निकलना है,
आखिर हम खुदा के हुजूर मकबूल ठहरे, हमारी दुआएं खुदा के हुजूर पहुंचे। खुदा हमें ये सिखाता है कि हमें घुटनों पे बल होना है ताकि हम अपनी खुदी का इनकार करके खुदा के हुजूर हाजिर हो सके। नंबर 3, घुटने टेकने से आप दूसरों के लिए बरकत का बायस होते हैं। जब हम खुदा के हुजूर घुटने टेकते हैं, घुटनों के बल होकर दुआ करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम डेली यहाँ पर 8:30 से 9 बजे तक काफी भाई हैं जो अपने लिए, एक दूसरे के लिए, लोगों के लिए, दरख्वास्तों के लिए खुदा के जो घुटने टेक कर दुआ करते हैं, तो यकीनन हमारी खुदा सुनता है, दुआएं आती हैं, खुदा की शुक्रगुजारी। हम सीख रहे हैं कि घुटने टेकने से हम दूसरों के लिए बरकत का बायस होते हैं। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, मेरे साथ निकालिए पहला सलातीन उसका 8वां बाब। अगर हम खुदा के घुटनों के बल होते हैं तो हम दूसरों के लिए बरकत का बायस होते हैं। हमारी बरकत दूसरों के अंदर कन्वर्ट होती है, मुंतकिल होती है। 54 और 55 आए 8 बाब, पहला सलातीन उसका 8वां बाब। लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब सुलेमान खुदावन से ये सब मुनाजात कर चुका तो खुदावन के मजबे के सामने से जहां वो अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए हुए घुटने टेके था, उठा और खड़े होकर इस्राएल की सारी जमात को बुलंद आवाज से बरकत दिया। दोबारा सुनिए, और खड़े होकर इस्राएल की सारी जमात को बुलंद आवाज से बरकत दी। बरकत देने से पहले उसने क्या किया था? वो घुटने टेक कर दुआ कर रहा था। खुदावंद के हुजूर वो घुटनों के बल हुआ था। जब हम घुटनों के बल होते हैं तो हम दूसरे के लिए बरकत का बायस होते हैं। लिखा है कि उसने बुलंद आवाज से सारी जमात को बरकत दी। जब हम घुटनों के बल होते हैं तब हमसे मुंसलिक जो लोग होते हैं वो बरकत पाते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। उसके बाद अमाल की किताब निकाली जो हम सीख चुके हैं, 9वां बाब, उसकी 40वें और 41वें आयत। घुटने टेकने के वसीला से हम दूसरों के लिए बरकत का बायस होते हैं। 40वें आयत में लिखा है, पतरस ने सबको बाहर कर दिया। एक लड़की तबीता नाम है, उसको पतरस जब दुआ करता है घुटने टेक कर तो जिंदा होती है। हालेलुया। क्या पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की, फिर लाश की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, ऐ तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द किया। हालेलुया, हालेलुया। ये घुटने टेकने का असर है, ये घुटने टेकने की बरकत है। जब हम घुटनों के बल होते हैं, हमें ये सीखना है। आज खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, जब हम घुटनों के बल होकर दुआ करते हैं तो हम जिंदगियों को बचाते हैं। हमें जिंदगियां हमारे वसीला से बचती हैं। ये खुदा का कलाम सिखा रहा है। नंबर 4, घुटने के बल होने से हम अपने लिए और अपने अजीजों के लिए शिफा हासिल करते हैं। घुटनों के बल होकर हम अपने लिए भी शिफा हासिल कर सकते हैं और अपने अजीजों के लिए भी। मेरे साथ निकालिए मरकस रसूल की इंजील उसका पहला बाब। अपने लिए शिफा और अपने अजीजों के लिए पहला बाब, उसकी 40वें और 41वें आयत। बल्कि 44वें आयत तक पढ़ेंगे ताकि और बात भी हम समझ सकें। 40वें आयत में लिखा है, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, क्या किया? घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर
कर उससे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। जब हम घुटने टेकते हैं तो हम अपने लिए शिफा को तस्लीम करते हैं। जब हम घुटने टेकते हैं तो हमारा ईमान होना चाहिए, हमारा यीशु अगर आज जिंदा है तो आज भी वो हमें शिफा देने की कुदरत रखता है। आज भी अगर मैं उसे कहूँ कि यीशु तू मुझे शिफा दे सकता है, मैं चाहता हूँ तू मुझे शिफा दे, तो आज भी यकीनन वो हमारी दुआ पर काम लगाएगा। घुटनों के बल होना है। यीशु ने दो काम किए, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, क्योंकि जब हम तारीख को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है जो कोई कोड़ी को हाथ लगाएगा वो नापाक होगा, वो भी नापाक हो जाएगा, क्योंकि कोड़ी भी नापाक होता था और जो उसको हाथ लगाएगा वो भी नापाक गिना जाएगा। लेकिन यीशु मसीह की कामिल कुदरत जो उसके अंदर मौजूद थी, उसके वसीला से उसने उस कोड़ी को छुआ और चुप कर नहीं, सरेआम छुआ, ताकि सब जाने सारी कुदरतों का मंबा वही है। आमीन। लिखा है कि उसने छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं कि पाक साफ हो जा। ये यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं। हमें भी ऐसा ही जवाब सुनने को मिलेगा, घुटनों के बल होना है। और 42वें आयत में लिखा, फिल फोर उसका कोड़ जाता रहा, फिल फोर फौरी, और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद, यानी यीशु ने उसे ताकीद करके फिल फोर किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने दाई काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीज़ों को जो मूसा ने मुकर्रर की नजर गुजरा, ताकि उनकी गवाही। तो जो कोड़ी होता था जब वो पाक साफ हो जाता था तो मूसा ने उनके लिए नजर मुकर्रर की थी। हमें अहबार की किताब 14 बाब में मिलता है। यीशु मसीह ने उसे ताकीद की कि जा अपने ताई काहिन को दिखा, क्योंकि काहिन इस बात की तस्दीक करता था कि ये कोड़ी पाक साफ हो चुका, अब ये नापाक नहीं है। यीशु मसीह ने, क्योंकि वो कामल खुदा, उसने पूरा काम मुकम्मल किया है, पूरा जो प्रोसेस था उसने मुकम्मल किया उस कोड़ी को शिफा देकर, ताकि वो काहिन के पास जाए और एलानिया वो पाक ठहरे। फिर उसके बाद मत्ती रसूल की इंजील निकालिए, उसका 17वां बाब। हम सीख रहे हैं कि घुटनों के बल होने से हम अपने लिए शिफा और अपने अजीजों के लिए भी शिफा हासिल कर सकते हैं। 17वां बाब 14वीं, 15वीं और 18वीं आयत। मत्ती रसूल की जो यूं लिखा है, और जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा। क्या किया? घुटने टेक कर कहने लगा, ऐ खुदावंद मेरे बेटे पर रहम कर। हम क्या सीख रहे हैं कि हम अपने लिए शिफा और अपने अजीजों के लिए शिफा ले सकते हैं। घुटनों के बल होना बहुत जरूरी है। वो घुटनों के बल हुआ, ऐ खुदावंद मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। तो वहां आगे दो चार बातें उसने कहा कि मैंने तेरे शागिर्दों को भी दिखाया, लेकिन वो उसे ना निकाल सके। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को डांटा। फिर 18वीं आयत में हमें मिलता है, यीशु ने उसे छिड़का और बदबू उससे निकल गई और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया। घुटनों के बल जब हम होते हैं तो अपने अजीजों के लिए शिफा हम खुदा से रिसीव करते हैं। वो घुटनों के बल हुआ, उसने कहा, यीशु मेरे बेटे पर है। अगर हमारे खानदान में हमारा भाई बहन बेटी बेटा अगर बीमार है, घुटनों के बल हो जाइए, यकीनन खुदा हमें उसका जवाब देगा। आखिरी बात है, घुटनों के बल होने से खुदा हमें बड़ी मुसीबतों से छुड़ाता है। मेरे साथ निकालिए दानियल की किताब, दानियल मर्द खुदा मर्द दुआ, उसका 6वां बाब 10वीं आयत से 21वीं और 22वीं आयत में पढ़ेंगे। घुटने टेकने से हमें खुदा बड़ी मुसीबतों से आज़ाद करता है। 10वीं आयत लिखा है, 6वें बाब की 10वीं आयत,
اور جب دانیال نے معلوم کیا کہ اس نوشتے پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا. اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا. وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا ہے. تو جب بادشاہ نے سائن کر دیے کہ جو بھی اس مورتی کے علاوہ کسی اور معبود کو پوجے گا تو اسے شیروں کی ماند میں ڈالا جائے گا. یہ بادشاہ کا سائن اس نوشتے کا ہو چکے تھے. اس کے بعد دانیال اپنے گھر میں آیا, گھٹنوں کے بل ہوا. گھٹنوں کے بل ہو کر اس نے خدا کے حضور دعا کی اور اس کی شکر گزاری کی. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا میرے ساتھ نکالیے, اس کی 21ویں اور 22ویں آیت ہم پڑھیں گے. جب دانیال کو شیر کی ماند میں ڈالا گیا تو یہ بادشاہ بھی جانتا تھا کہ یہ زندہ خدا کی پرستش کرنے والا ہے. یقیناً خدا جس کی یہ پرستش کرتا ہے وہ اسے چھڑائے گا. 21ویں آیت میں لکھا ہے, بلکہ 19ویں آیت میں پڑھتے ہیں, اور بادشاہ صبح بہت سویرے اٹھا. دانیال ہی کی کتاب ہے 6واں باب اس کی 19ویں آیت. بہت سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی ماند کی طرف چلا. اور جب ماند پر پہنچا تو غمناک آواز سے دانیال کو پکارا. بادشاہ نے دانیال کو خطاب کر کے کہا, اے دانیال, زندہ خدا کے بندے, کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ سوالیہ نشان ہے, وہ سوال کر رہا ہے. 21ویں آیت میں لکھا ہے, تب دانیال نے بادشاہ سے کہا, اے بادشاہ, ابد تک جیتا رہے. یہ خدا کے بندوں کا ورثہ ہے. یسوع مسیح نے بھی تعلیم دی, اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو. بادشاہ کے حکم سے دانیال شیروں کی ماند میں ڈالا گیا, لیکن اس نے کہا کہ اے بادشاہ, ابد تک جیتا رہے. میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے. ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ. اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا, اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں. عزیزو, جب ہم گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں تو خدا ہمیں بڑی مصیبتوں سے آزاد کرتا ہے. بے شک کسی قسم کی بھی مصیبتیں ہوں. اب شیروں کی ماند میں ڈالا جانا کوئی چھوٹی مصیبت نہیں ہے. آگ کی بھٹی میں ڈالا جانا چھوٹی مصیبت نہیں ہے. لیکن اب جب ہم گھٹنوں کے بل ہوں گے تو خدا ہمیں یقیناً اس سے بھی بڑی مصیبتوں سے آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہمیں آخری حوالہ دیکھیں گے جسے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے, تاکہ خدا آج کا یہ کلام ہمارے لیے, ہماری زندگیوں کے لیے برکت اور سلامتی کا وسیلہ بنائے. میرے ساتھ نکالیے افسیوں کے نام پر اس رسول کا خط, اس کا 3واں باب. یقیناً خدا کا کلام ہمیں جو ہمارے اندر کمی ہوتی ہے, جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, وہی ہمیں سکھاتا ہے. یہ خدا کے کلام کی قدرت ہے, یہ خدا کی قدرت ہے. آج ہم نے بہت باتیں سیکھی ہیں جو گھٹنے ٹیکنے کے متعلق ہیں. یقیناً ہم سب نے اس کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. افسیوں 3واں باب 14ویں اور 21ویں آیت, 14ویں آیت سے لے کر 21ویں لکھا ہے, اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں. پولس رسول کہتا ہے, اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے, کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ. ہم نے سیکھا ہے کہ گھٹنوں کی صحت کا تعلق ہماری روحانی طاقت سے بھی. جب ہم خدا کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہوگا, ہمارے گھٹنے, ہمارے ٹخنے, ہماری ہڈیاں مضبوط ہوں گی. تو لکھا ہے کہ پولس رسول دعا کر رہا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ, اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے, تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کر اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت خوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے, اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے, تاکہ تم خدا کی ساری معمولی تک معمول ہو جاؤ. اب جو ایسا قادر ہے
کہ اس قدرت کے موافق جو ہمیں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور عبدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔ تو عزیزو، آخری حوالہ میں بھی ہم نے یہ سیکھا کہ پولس رسول کہتا ہے کہ اس وقت سے میں اس بات کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نام چل سکے۔ تو عزیزو، گھٹنے ٹیکنا خدا کے کلام کے عین مطابق ہے۔ ہم نے مختلف طریقوں سے آج سیکھا ہے گھٹنے ٹیکنا کیوں ضروری ہے، کس برکت کا راز ہے۔ تو آج ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو خدا نے آج ہم سے کلام کیا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ کلام ہم ساتھ لے کر جائیں، ہماری زندگیوں کے اندر وہ پریکٹیکلی طور پر نظر آئے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو خدا